Okay, so we have been talking about tension, force applied by the strings and ropes. So let us study cases in which two bodies are connected together and they are moving. Okay, like for an example, suppose two bodies A and B are connected with a string, and one of the bodies, suppose here A is being pulled horizontally with a force F. Then what will happen and how do we solve this type of questions? Let us analyze. Okay, so we understand here that F is the force, F is the pull on the body A of mass m1. Okay, and the pull of A body will also pull B with the help of a string. Okay, using the force tension of the string. The value of tension throughout the string is T only, because we, if not written, then we consider that the tension of the string is constant because we assume that the string is massless. Okay, so if we solve this question, see, first of all what we do is we draw the free body diagrams of all the bodies present in the system. Okay, so I'm going to draw the free body diagram of block B first. Okay, suppose I draw the free body diagram of B. Its mass is m2. Okay, so the first force that we apply here is the field force. Field force will be mg in the downward direction, so m2g. Okay, suppose a force in the upward direction is applied by this surface. Okay, let us call this as n2 for the mass m2. Okay, and also string is connected here at the right end, so यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, T force लगा देते हैं, which will pull this block B in the right direction. Block B को right direction में force कौन सा लग रहा है, tension force लग रहा है, उसी की वजह से वो आगे की तरफ जाएगा. ठीक है, अगर मैं A ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जाऊं तो इसका मास m1 है, its mass is m1. Okay, so now we apply the field forces. So the downward force applied by the earth, that is its weight, will be m1g. So m1g in the right direction, and surface applies a normal force in the upward direction, which let us call n1, because the mass of the body is m1. Okay, now other contact forces which are present are F in the right direction, so I apply F in the right direction, and also you see that string, the other end of the string is connected here, so we will apply tension T on it in the left direction. Okay, now all the forces are complete. Now we should decide in which direction the body might move. Okay, so clearly since the force F is pulling the bodies in the right direction, so I can say that the acceleration of body B and A are both small a in the right direction. Okay, I have drawn also the direction of motion of these bodies. Now the next thing what we do is we write the force equations in x and y direction. Okay, clearly we can see that n2 and m2g will balance each other. Okay, because the body does not have any tendency of moving in the y direction. तो यहाँ पे n2 जो force है ऊपर की तरफ जो सरफेस लगा रहा है वो एग्जैक्टली m2g को बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये ऊपर और नीचे एक्सेलरेट ना हो सके. ओके, एक्चुअली जो सरफेस का सपोर्ट है वो m2g को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है. इस ब्लॉक में भी अगर हम देखें तो m1g को ग्राउंड का जो सपोर्ट है n1 वो एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा होगा, तो उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. वी कैन क्लियरली राइट हियर दैट n2 for this block will be equal to m2g. ठीक है, और दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पे कि n1 जो नॉर्मल है ऑन ब्लॉक A वो कितना हो जाएगा m1g. इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं थी यहाँ पे, सो आई हैव जस्ट रिटन इट हियर. अब हम क्या करते हैं बच्चों, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. ठीक है, सेकेंड लॉ के लिए, सेकेंड लॉ से अगर मैं सबसे पहले लिखूं B ब्लॉक के लिए तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर ब्लॉक B. ओके, तो अगर x डायरेक्शन में लिखे हम तो आई विल जस्ट राइट हियर इन x
ठीक है, इस पर एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है बच्चों T, जिसकी वजह से इसको खींचा जा रहा है उधर की तरफ. सो ऑब्वियसली ओनली वन फोर्स इज देयर, सो वी नीड नॉट वरी मच. इस पे क्या लगाता हूं मैं, टेंशन T, और इसी की वजह से क्या आ रहा होगा, इस पे एक्सेलरेशन आ रहा होगा. तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका मास m2 और इसका एक्सेलरेशन a. करेक्ट है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं बच्चों. करेक्ट है, तो इसका काम हो गया x डायरेक्शन में. नाउ आई शुड गो टू ब्लॉक A. इस वाले ब्लॉक के ऊपर जाते हैं. इस पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको दिख रहे होंगे. एक एक्सटर्नल फोर्स F है जो उसको राइट खींच रहा है, और एक टेंशन है जो लेफ्ट में खींच रहा है. ठीक है, वो स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है. तो इफ आई राइट फॉर ब्लॉक A, ठीक है, इन x डायरेक्शन. y डायरेक्शन की हमने पहले ही बात कर ली थी बच्चे, तो हमें उसके बारे में कोई वरी नहीं करना है. वी डायरेक्टली हैव टू राइट इन x. ओके, द न्यूटन सेकेंड लॉ, मतलब कि फोर्स का नेट वैल्यू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी राइट में ट्रैवल करने की टेंडेंसी रखती है, तो F फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द लेफ्ट फोर्स, दैट इज टेंशन. तो F उधर का बड़ा वाला फोर्स इस डायग्राम में माइनस T, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन. सो इट्स मास इज m1 और इसका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों का सेम ही ले रहे हैं हम लोग, a ही ले सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू a. ये हमारे लिए क्या बन गई बच्चों, सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब हमें क्या करना है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो इस केस में, ठीक है, सो व्हाट वी डू इज वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं डायरेक्टली, ठीक है, तो बच्चों क्या मिल जाएगा हमको, देखिए यहां पर अगर ये और ये इक्वेशन ऐड करूं तो t एंड t विल बी कैंसल्ड. वी विल गेट डायरेक्टली f इज इक्वल टू एक m1a आएगा और एक m2a आएगा. t और t लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो चुके हैं, तो डायरेक्टली आई कैन राइट m1 प्लस m2 इंटू a. तो यहां से हमको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मिल गया, फोर्स अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए. तो हमने इसमें समझा कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना करके और इक्वेशंस अगर मल्टीपल बॉडीज हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. तो इससे थोड़ा सा एक एडवांस क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कि जिसमें तीन बॉडीज अगर कनेक्टेड हो जाए एक दूसरे के साथ स्ट्रिंग्स की हेल्प से, देन हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग, वो हम देखते हैं जल्दी से. ओके, आई होप यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अच्छा, मैं अगर एक शॉर्टकट बताऊं तो इसके लिए इन दोनों बॉडीज को क्या मान लो, m1 और m2 को क्या मान लो, एक कंबाइंड बॉडी मान लो, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है. अगर इन दोनों को कंबाइंड बॉडी मान ले m1 प्लस m2, तो उस केस में डायरेक्ट भी एक्सेलरेशन निकाल सकते थे हम लोग. फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास से हमें पूरा का पूरा एक बार में एक्सेलरेशन मिल सकता था. करेक्ट है. सी, अगर ऐसे तीन बॉडीज कनेक्ट हो जाएं, उस केस में हमें क्या करना होगा, लेट अस सी. देखो इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सी ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहे हैं. सपोज करिए सी से कनेक्टेड स्ट्रिंग जो है वो बी पर फोर्स लगा रही है आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, और फिर इन टर्न बी के साथ जो कनेक्टेड है दूसरी वाली स्ट्रिंग वो ए पर फोर्स लगाती है. तो अल्टीमेटली ये तीनों बॉडीज एक साथ चलने लग जाते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि भाई ए बॉडी का एक्सेलरेशन ए है, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट उसका भी और नेक्स्ट वाली बॉडी का भी एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, ए होने वाला है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सपोज करो कि यार यहाँ पे 3 बोरे रखे हुए हैं, दे आर फिल्ड विथ राइस, 3 sacks आर देयर एंड दे आर फिल्ड विथ राइस. तो आप क्या करते हो, व्हाट यू डू इज यू पुल द फर्स्ट sack, राइट, एंड द सेकेंड sack pulls the first sack, है ना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अल्टीमेटली वो भी उसके साथ खींचा चला जाता है, उसके साथ ये भी चला जाता है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसी डायग्राम को देख करके और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम सबके लिए. देखिए बट सपोज फॉर द फर्स्ट ब्लॉक ए, इफ आई टॉक, देखो उसका मास कितना है बेटा, m1 मास है, और उसको सिर्फ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है
दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, यहां पे कनेक्टेड है, इस पे एक टेंशन T1 राइट डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। तो इसके सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स अगर बात करूं तो ऊपर की तरफ सरफेस की वजह से R1, स्ट्रिंग की वजह से T1 इधर, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम बोल सकते हैं कि M1G नीचे की तरफ आ जाएगा, करेक्ट है। इस पे सिर्फ एक स्ट्रिंग का कॉन्टैक्ट आया है और एक नॉर्मल फोर्स आया है, तो इसको रिएक्शन बाय द सरफेस बोल करके वी हैव टेकन R सिंबल, ओके। यू कैन ऑल्सो टेक N1, इट डज नॉट मैटर मच। अगर हम सेकेंड बॉडी पे देखते हैं, बी बॉडी को यहां पर देखो, इसको लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिंग 1 और राइट साइड में स्ट्रिंग 2 कनेक्टेड है बच्चों। तो देखो राइट साइड में स्ट्रिंग 2 कनेक्टेड है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, टेंशन T2 इधर की तरफ लगाया है और T1 इधर की तरफ लगाया है। इसका मास है M2, तो mg नीचे की तरफ हो गया, M2g मैग्नीट्यूड का, और R2 हो गया रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन विच द ब्लॉक इज केप्ट। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद लास्ट वाली बॉडी पे जाते हैं, देखो उस केस में वहां पे फोर्स राइट डायरेक्शन में है, तो यहां भी बना दिया। टेंशन हमेशा पुल करता है, ये स्ट्रिंग इस पे यहां पे कनेक्टेड है, वो हमेशा पुल करेगी, तो इस लेफ्ट डायरेक्शन में T2 बना दिया। रिएक्शन बाय द सरफेस R3 ऊपर और M3G नीचे, ठीक है। अज्यूमिंग कि ऑल 3 बॉडीज आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, अज्यूम कर लेते हैं कि ऑल 3 बॉडीज आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ए एक्सेलरेशन से, कैन वी राइट द इक्वेशन फॉर न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सम ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्योंकि आपको पता है, देखिए ये बॉडीज हॉरिजॉन्टली पुल की जा रही हैं, सो वी कैन क्लियरली से कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें तो इक्विलिब्रियम है। एक्स डायरेक्शन में हमें फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लिखनी चाहिए। अगर इसके लिए मैं लिखूं तो वी कैन राइट सी T1 एक ही फोर्स है राइट डायरेक्शन में, इसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा होगा A, तो मैं लिख सकता हूं T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसके लिए सिंगल फोर्स था। अगर मैं इस बॉडी के लिए लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, सो वी हैव अज्यूम्ड कि T2 जो है बड़ा होगा, T1 छोटा होगा। ऑब्वियस बात है ये तो कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1, अदरवाइज द बॉडी कैन नॉट मूव इन द राइट डायरेक्शन। तो ये हो गया। सिमिलरली बेटा अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या होगा, द बॉडी विल स्टे एट रेस्ट, है ना। इसको खींचने के लिए एक एक्स्ट्रा, मतलब एक तरफ कोई रिजल्टेंट फोर्स होना जरूरी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैपिटल F और T2 में कौन बड़ा होगा, तो एक्सेलरेशन देखो उधर जाने की टेंडेंसी है, सो फोर्स F शुड बी ग्रेटर देन T2। तो मैंने लिखा बड़े में से छोटे को घटाया, ऑपोजिट फोर्स को घटाया, एंड देन वी विल गेट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, M3 इंटू A, ठीक है। इन दिस वे वी हैव रिटन न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन इन ऑल 3 केसेस, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, देखिए यही इक्वेशंस थी, T1 इज इक्वल टू M1A। अभी जो हमने इक्वेशंस लिखी बच्चों, T1 इज इक्वल टू M1A, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A, और F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। उधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ठीक से लिख करके और फिर अगर हम सॉल्व करें, राइट, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन राइट अवे, ठीक है। तो हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहिए जिससे कि आपको एक्सेलरेशन मिल जाए। बेटा इफ आई ऐड दीज 3 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, यू विल सी कि यहां पे T1 है और यहां पे माइनस T1 है, दे विल कैंसिल ईच अदर। T2 है और ये माइनस T2 है, ये भी कैंसिल कर दिया आपने। सो व्हाट यू फाइनली गेट इज F इज इक्वल टू, देखो M1A, M2A, M3A, तो adding them we can get M1A plus M2A plus M3A, right? तो अगर A कॉमन लेकर के मासेस को इधर भेज दूं तो we can get the value of A as how much? Force upon M1 plus M2 plus M3, ठीक है। We could have solved directly also by saying that the total force pulling all these 3 blocks is capital F,
ओके, इन द राइट डायरेक्शन, और टोटल मूविंग मास जो है वो क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो अगर पूरे के पूरे फोर्स को इफ आई डिवाइड विथ टोटल ट्रैवलिंग मास, तो आपको डायरेक्टली भी एक्सेलरेशन मिल सकता था, राइट। नाउ अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को बेटा अगर हम t1 में वाली इक्वेशन में पुट कर दे, सो वी कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ t1 हियर, ठीक है, t1 की वैल्यू मिल जाती है, और उसके बाद अगर किसी इक्वेशन जिसमें t2 लिखा हुआ है उसमें अगर a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें t2 भी मिल सकता है, ठीक है। आई विल लीव इट हियर, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, सो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाला जब तीन बॉडीज कनेक्टेड थी। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग जिसमें हम लोग के पास वैल्यूज भी होंगी, ठीक है, और टेंशन तक उसको सॉल्व करते हैं, सो वी विल बी एबल टू इंप्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग। देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर्स, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग। ये बहुत अच्छी बात है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग के बोथ एंड्स पर, देखो ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनके दोनों एंड्स पर जो टेंशन की वैल्यूज होगी वो क्या ले सकते हैं हम लोग, सेम ले सकते हैं, ठीक है। मासलेस बोलने का ये मतलब हो गया। एंड इज प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, मास ऑफ बॉडीज एंड अप्लाइड फोर्सेज आर इंडिकेटेड। यहां पे ध्यान से देखो तो फर्स्ट बॉडी जो है वो 3 kg की, नेक्स्ट 5 kg, नेक्स्ट 2 kg की है, ठीक है। यहां पे सपोज करो कि 3 बॉडीज हैं अलग अलग मासेस की, लेफ्ट में 100 न्यूटन और राइट में 50 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, टेंशन इन स्ट्रिंग्स और नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक वेयर एवर रिक्वायर्ड, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा बोल दिया इन्होंने, हमारी हेल्प हो गई, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 10 लेना है कि 9.8 लेना है, राइट। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर सेफ्टी कि आप g इज इक्वल टू 10 कंसिडर कर सकते हो डायरेक्टली फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। चलो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं यार। इन द लेफ्ट डायरेक्शन आप देखो कि 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और राइट साइड में 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। मैं पूछूं कौन सा फोर्स मजबूत है, कौन सा फोर्स ज्यादा ताकतवर है, यू विल से दैट 100 न्यूटन इज लार्जर देन 50 न्यूटन। तो मैंने पूछा भैया ये बॉडीज किस डायरेक्शन में भागेंगी, यू विल से कि ये तो ऑब्वियसली लेफ्ट डायरेक्शन में भागने वाली है। ये पहली बॉडी भी उससे कनेक्टेड, दूसरी बॉडी भी उससे कनेक्टेड, तीसरी बॉडी भी, सब किधर भागेंगे, लेफ्ट में भागेंगे। ऑब्वियसली 50 न्यूटन उसके एक्सेलरेशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऑल दीज बॉडीज टेंड टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, सबके लिए एक नाम दे देते हैं, इसका A, इसका B, इसका C, ओके, और सबके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, A, B और यहां पर C, ठीक है बच्चों। लेफ्ट डायरेक्शन में आप देखो कि 100 न्यूटन लग रहा है इस पे, ओके, और इस स्ट्रिंग का नाम मैं 1 दे देता हूं, दूसरी स्ट्रिंग का नाम मैं 2 दे देता हूं, ठीक है, जिससे कि हम टेंशन को नेम दे सकें T1 एंड T2, करेक्ट। अगर मैं A पर फोर्सेस बनाने की बात करूं तो नीचे की तरफ सबसे पहले mg लगाना चाहिए हमें, ठीक है। इसका मास है 3 और g हो गया 10, तो ये 30 लिख दो विदाउट एनी डाउट। ऊपर की तरफ इस पे n1 लगा देते हैं, आप r1 भी लिख सकते हो, इट डज नॉट मैटर। लेफ्ट डायरेक्शन में बच्चों इस पे कितना फोर्स आ गया हमारे पास, 100 न्यूटन, और राइट डायरेक्शन में बोल सकता हूं कि इस पे फोर्स होगा T1, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी कंप्लीट है, ऑल द फोर्सेस आर प्रॉपर्ली ड्रॉन। अगर मैं B की बात करूं तो फिर से B वाले ब्लॉक पे यहां पे स्ट्रिंग 1 कनेक्टेड है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में इसको पुल करेगी T1 फोर्स से, करेक्ट है क्या, T1 फोर्स से ये लेफ्ट में पुल हो रहा है। और इससे राइट डायरेक्शन में देखो एक स्ट्रिंग 2 कनेक्टेड है, इसको T2 से पुल करेगी उस डायरेक्शन में। इसमें आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में फोर्सेस का कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। अब अगर मैं बात करूं उस पे और एक फील्ड फोर्स होगा, कौन सा, ऑब्वियसली सही बोला आपने, mg हो जाएगा बच्चों, mg। इसका m कितना है 5, तो नीचे की तरफ 50 न्यूटन लगा देते हैं। अभी भी एक फोर्स बच रहा है। अभी अगर इस बॉडी को देखो तो ये तो नीचे जाने वाली है, इसको रोकने के लिए ये वाला सरफेस क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा जाएगा, मैं इसको बोल देता हूं N2, राइट। अब बेटा C वाले ब्लॉक को देखो, C को भी तो लेफ्ट जाना है
कौन खींच रहा है? तो आप बोलोगे सर ये स्ट्रिंग नंबर 2 खींच रही है इसको। कहां पे लगी है? सर ब्लॉक पे लेफ्ट डायरेक्शन में लगी है। मैंने बोला तो वहां पे T2 चिपका दे। T2 फोर्स विल एक्ट ऑन बॉडी C इन द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर मैं पूछूं एक और फोर्स है यार जो हमें डायग्राम में विजिबल है, तो आप बोलोगे सर 50 शो कर दो राइट डायरेक्शन में। ये गड़बड़ हो गई रे। वापस आते हैं, 50 राइट डायरेक्शन में शो कर दिया। नीचे की तरफ इस पे अगर mg बनाने को कहूं तो आप बोलोगे सर इसका मास तो 2 है, 10 से मल्टीप्लाई करके 20 नीचे लिख दीजिए, काम हो जाएगा। मैंने बोला ओके ऑल राइट, डोंट बी एंग्री। Now we will also apply a reaction force by the surface in the upward direction. Normal force will act in the upward direction and we will name this as N3. We will name this as N3. Now if I ask you to also show the direction of motion, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट में एक एरो बना दो। मैंने बोला बढ़िया भाई, I have drawn that also. मैंने बोला इसमें क्या लिख दूं? एक्सेलरेशन सबका अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो आपने बोला सर सेम होगा बिकॉज ऑल द बॉडीज आर कनेक्टेड टुगेदर। मैंने बोला अच्छी बात, लिख देता हूं यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया, राइट। चलो तो सारी बॉडीज लेफ्ट में जा रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूछूं तो 100 बड़ा होगा T1 से, इधर पूछूं तो T1 बड़ा होगा T2 से, और इधर पूछूं तो T2 बड़ा होगा 50 न्यूटन फोर्स से। करेक्ट है, ये 50 हो गया। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो y डायरेक्शन में बात करके खत्म करो। इसके लिए N1 का मुकाबला कौन करेगा? 30, या मैं बोलूं 30 न्यूटन का मुकाबला कौन करेगा? N1 डायरेक्टली। तो N1 इज इक्वल टू 30, इसमें कोई डाउट नहीं था। इसके लिए लिखूं तो N2 इज इक्वल टू 50, इसमें कोई डाउट नहीं था। लास्ट के वाले के लिए लिखूं N3 इज इक्वल टू 20, तो यहां भी मैं सही हूं। एंड वी हैव ऑल द नॉर्मल फोर्सेस, है ना, ऑन द प्रॉपर इंडिविजुअल बॉडीज। तो ये बात हो गई भाई, वाई डायरेक्शन की बात खत्म हो गई, हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो ज्यादा किसमें है? इन द डायरेक्शन इन विच बॉडीज आर मूविंग। तो दैट डायरेक्शन इज व्हाट? एक्स डायरेक्शन। बॉडी तो कैसे चल रही है भाई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनके लिए हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोर्स लिख पाए। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं अब ए बॉडी के पास जाता हूं और एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस को देखता हूं, तो ए के लिए मैं लिखता हूं डायरेक्टली, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। देखो इधर की तरफ जाने वाली बॉडी है, अपनी बात हो गई थी, बिकॉज 100 न्यूटन इज मोर देन 50 न्यूटन। ओके, सो द बॉडीज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 100 न्यूटन ओनली, राइट। तो उसकी चिंता नहीं करनी हमें, डायरेक्टली फोर्स के लिए इक्वेशंस लिखते हैं। तो इसके लिए लिखूंगा लेफ्ट वाला फोर्स माइनस राइट वाला फोर्स, वो क्या है? T1 बराबर हमें क्या मिल गया? वी हैव गॉट इट्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास है कितना? 3, देखो, और इसका एक्सेलरेशन हमने क्या माना हुआ है? A। तो बात खत्म हो गई यहां पर। बच्चों नेक्स्ट बॉडी के पास चलते हैं, लेफ्ट वाला फोर्स लिखवाओ। अगर मैं बी बॉडी के लिए बात करूं तो लेफ्ट डायरेक्शन में आप देखते हो फोर्स आ गया T1 माइनस राइट वाला फोर्स हो गया T2, और फाइनली मास इनटू एक्सेलरेशन उसके लिए लिखूंगा तो लिखूंगा 5 इंटू ए। बची हुई बॉडी है सी। सी के लिए मुझे लिखवा दीजिए, देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आया इस बार? T2, और राइट डायरेक्शन में कौन है? 50। सो आई कैन राइट, देखो T2 माइनस 50 इज इक्वल टू हाउ मच? इट्स मास इज 2 और एक्सेलरेशन है a। अगर इन तीन इक्वेशंस को हम ऐड कर दें बच्चे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशंस को एक साथ और राइट हैंड की इक्वेशंस को एक साथ ऐड कर दें अगर, व्हाट वी सी इज ये T1 और ये माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर यहां देखो तो माइनस T2 है और यहां T2 है, ऐड करने पे खत्म हो जाएंगे, करेक्ट। बचा कौन? 100 और 50। 100 माइनस 50 अगर बहुत मेहनत करे कोई, ठीक है, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, मेहनत करो। 100 माइनस 50 you will get 50 only, and on the right hand side what you get? 3 plus 5 plus 2, how much? It is 10 है। बच्चों यहां पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो, मुझे क्या करना होगा? 10 को उधर भेज दे। एक्सेलरेशन विल बी 5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ चुका है हमारे पास। सो फर्स्ट आंसर वी हैव गॉट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स इज हाउ मच? इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सब साथ साथ जाएंगे लाइन बना के छोटे बच्चों की तरह, और कितने एक्सेलरेशन से जाएंगे बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही भागेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। ये तो हो गया इनका एक्सेलरेशन। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग बता दो। टेंशन इन द स्ट्रिंग 1 और टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 बताने को कहा गया है हमसे। मैं वापस आता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन में मुझे T1 की वैल्यू दिख रही है आती हुई, सो आई विल यूज द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूं बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, फ्रॉम 1 इफ आई राइट, देखो 100 माइनस T1 क्या मिला हमें? 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 3 तो उसका मास था और एक्सेलरेशन हमने अभी 5 निकाला है। 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे? 15। तो T1 की वैल्यू बच्चे यहां से क्या मिल गई हमको? T1 को उधर भेज दो, 15 को इधर ले आओ। 100 माइनस 15 अगर लिखोगे तो वो 85 न्यूटन आ जाएगा। बात खत्म। तो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग मतलब टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग बिटवीन A एंड B इज हाउ मच? A और B के बीच में कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया बच्चों? 85 न्यूटन आ चुका है हमारे पास। ठीक है, आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। अब आप सोचो मन में कि हमें T2 सॉल्व करना है, कौन सी इक्वेशन अच्छी रहेगी? तो ये वाली इक्वेशन भी इक्वली अच्छी है दूसरी वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल दूं डायरेक्ट, 2 तो भूल गए रे। एनीवेज, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इफ आई राइट, ठीक है, 3 में अगर लिखे तो T2 की वैल्यू क्या है? 50 प्लस 2A, यानी T2 की वैल्यू क्या आने वाली है? देखो 50 प्लस 2A, 2A मतलब 10, ठीक है बच्चों। ये कितनी आ गई हमारे पास? देखो अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो ये हो जाएगी 60 न्यूटन, ठीक है। तो T2 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। दूसरी वाली स्ट्रिंग जो कनेक्ट कर रही है B और C ब्लॉक को, उसमें क्या है? टेंशन का वैल्यू 60 न्यूटन आ गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली सॉल्व्ड। अगर एक पार्ट और बात करूं मैं, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, तो नेट फोर्स देखो क्या होता है, हमें पता है। नेट फोर्स के लिए हम जानते हैं, देखिए F नेट इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। सारे फोर्सेस बैलेंस करने के बाद, मतलब इधर का 100 और उधर का T1, ये सब मिला जुला करके भी इफ आई फाइनली आस्क यू कि F नेट क्या होगा, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि उसकी जो टोटल वैल्यू आने वाली है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर ही होगी। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, ये वाला ब्लॉक हमने A लिया था, तो FA क्या हो जाएगा? देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है। FA डायरेक्टली करके देखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास था 3 और एक्सेलरेशन वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। तो अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 3 इंटू 5, तो इसके ऊपर नेट फोर्स आपको क्या मिल जाता है? 15 न्यूटन। अच्छा एक्चुअली करके देखते हैं भाई, 15 न्यूटन आ रहा है 3 kg के ऊपर। लेट अस सी कि एक्चुअली कितना नेट फोर्स था उस पे। 100 माइनस T1 था, 100 माइनस T1 था एक्स डायरेक्शन में। 100 हो गया माइनस T1 85, 100 माइनस 85 15 न्यूटन ही मिल रहा है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहां पर, ओके। तो ये वाला हमारा फ्रूटफुल वे हो गया। अगर मैं B पे पूछूं तो FB यू विल राइट एज हाउ मच? 5 इंटू 5 mass into acceleration, that will give you 25 Newton. Similarly, if I ask you कि FC कितना होने वाला है, you will say कि उसका मास 2 और उसका एक्सेलरेशन 5 ले लीजिए, तो 2 into 5 FC आ जाएगा बच्चों। डायरेक्टली आई वांट टू राइट इसका मास 2 और इसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था? 5, तो 2 into 5 10 न्यूटन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। आया क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।
इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जो हमें समझ में ना आए. ओके